अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The one next topic is fatty pyruvic acid is anaerobic respiration. Friend, you have already learned how to glucose is converted into the two molecules of pyruvic acid in the cytoplasm of a cell during to the glucolysis. In the presence of oxygen, pyruvic acid enter to the mitochondria and is the decarboxylated is the removal of carbon dioxide and dehydrogenated is the removal of hydrogen to acetyl as the COA. Acetyl COA is due to their connected to link between to the glucolysis and the next series of the reaction that yields more energy in the form of ATP. Acetyl COA can be also generated from to fat and protein. There is a Krebs cycle, Krebs cycle, or there a citric acid cycle. The acetyl CoA is their molecules entering through a Krebs cycles that are taking place in the matrix of mitochondria. And detail of this cycle were to work out by Sri Hans Krebs in the 1930s. It is also known as the tricarboxylic acid cycle as the TCA cycle. There is a name of TCA cycle means tricarboxylic acid cycle. And a step of the Krebs cycle are flowing here show. The Krebs cycle is the most important for the BSc level to the geology student. There is a curve the 3C NAD. They convert to the NADH plus positive and formation of carbon dioxide. The acidic is carried by the coenzyme A. The coenzyme is the formation of two different categories, acetone COAC2 and oxalated to the C and means Krebs cycle. The Krebs cycle is their formations is a citrate 6,6 is the formation of carbon dioxide and here NAD positive NADH plus H. There is a formation of alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate is a 5C is a formation of CO2. There is a ATP also formation of here and then ADF is the FDH plus H positive hydrogen and there are two NAD is a formation of 2 NADH plus 2H. The oxalated is a 4C. Their circle is a completely rotate the clockwise to the next. There is a Krebs cycle is a simplified and here the summary of this phase is a respiration is there are 2 pyruvic acid is a plus 8 NAD plus 2 FD plus 2 ADP is equal to as a 6 CO2 plus 8 NADH plus 2 FDH2 plus 2 ATP. There is a H carries as a NAD and the FD are derived from to the vitamin B complex and the are known as the coenzyme. The acetyl groups of 2 carbon enter to cycle by the combined with the acetylstate is a 4 carbon to form a citrate C6 carbon. This initially a citric acid cycle. As acetyl groups is a pass around to the cycle, there are 2 carbon atom are lost in CO2 in 2 decarboxylations is a reaction and hydrogen is added to the hydrogen carry in 4 dehydrogenations reaction resulting in the total of 3 NADH2 and 1 FDH2. The molecules. The one molecules of ATP is also made directly for every turn of the cycle. Remember that 2 acetyl groups were made from 1 glucose molecules. As such a 2 turn of the cycle, the occur per glucose molecules used. Oxygenators is regenerated at the end of the cycle, leading to the accept of another acetyl group. Thus, at the end of the citric acid cycle, there are a total of 10 NADH and there is a 2 FADH2. There are 2 FDH form the glucolysis. Note that all the hydrogen atom from the origin glucose are known the hydrogen carry NAD and FAD.
and this hydrogen carry enter to the next phase known as the respiratory chain. The electron transport chain means ETC for the further release of energy. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कैवरेज चक्र अथवा जो है सैट्रिक अम्ल चक्र के विषय में जो है बहुत महत्वपूर्ण बातें को जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं ये चीज़ें जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और कई क्लासों में जो है ये इंपॉर्टेंट देखने को मिला है, चाहे वो बड़े क्लास में हो, बीएससी के बच्चे हों, ठीक है, यहाँ जूलॉजी बच्चे लेते हैं, उनमें भी जो है कैवरेज चक्र जो है सैट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन देखने को मिलता है। साथ में जो है ये 11वीं हो या +2 के बच्चों में भी ये साइकिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान अपना रखता है। कहते हैं एसिटाइल जो है COA अणु जो है कैवरेज चक्र में प्रवेश करती है तथा ये क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री यानी मैट्रिक्स में होती है। ये कहाँ होती है दोस्तों? मैट्रिक्स यानी अधात्री में, जो मैट्रिक्स में होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। इस चक्र का विस्तृत विवरण जो है हैंस कैवरेज जो है 1930 इसमें दिया था, यानी इसका जो है प्रतिपादन किया गया था हैंस कैवरेज ने किया था, जो 1930 में किया था। तो इन्हीं के नाम से जो है इसका नाम कैवरेज चक्र रख दिया गया था। इसे जो है टैक्रोवैक्सलिस अम्ल चक्र अथवा TCA चक्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र या TSC के नाम से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कैवरेज चक्र का जो है आपके समक्ष एक डायग्राम प्रस्तुत किया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो कहते हैं कि इसमें जो है हमारे समक्ष तो यहाँ पर जो है केल्विन चक्र के विभिन्न पदों को जो है आपके समक्ष जो है डायग्रामेटिक शो किया गया है। इसमें देखिएगा जो ऊपर जो है पाइरुवेट जो है 3C के रूप में है और इसमें NAD जो है NADH+ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो है रिलीज हो रहा है। कहते हैं एसिटाइल जो होती है 2C जो होता है कोई एंजाइम यानी A द्वारा ले जाया जाता है, जिसकी जो है यहाँ पर चक्र के रूप में दिखाया गया है। तो ये कैवरेज चक्र ही ये पूरी तरह से है। इसमें एसिटाइल जो है COA फॉर्म में होता है, उसके बाद सिट्रेट होता है 6C में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड NAD पॉजिटिव NADH+ पॉजिटिव, फिर अल्फा कीटोगुल्टरेट जो होती है 5S के रूप में होती है और इसमें जो है CO2 ATP FAD, ठीक है, सारी चीज़ों का निर्माण होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पर केवल चक्र जो है संस्कृत रूप में यहाँ दर्शाया गया है, ठीक है। इसके जो है कुछ चरण हैं जिसके बारे में आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं सवाल इस चरण में जो है कुछ इस तरह से अभिक्रिया होता है, यानी आपको ये भी याद रहेगा तो काफ़ी कुछ जो है आप लिख सकते हो। 2 पाइरुवेट के जो है अम्ल है +8 NAD के साथ जुड़ता है, +2 FAD जो होती है 2 ADP के साथ जुड़ता है। तो इस अभिक्रिया के जब होती है तो हमारे समक्ष जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2 का निर्माण होता है, +8 NADH का निर्माण होता है, +2 FADH2 का निर्माण होता है और साथ में जो है 2 ATP का निर्माण भी इसमें संभव रहता है। तो कहते हैं हाइड्रोजन वाहक जो है NAD तथा FAD विटामिन B कॉम्प्लेक्स से उत्पन्न होती है तथा इनको ही एंजाइम कहते हैं, यानी जो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। B कॉम्प्लेक्स जो होती है सारे पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। उसे कहते हैं एसिटाइल जो है समूहिक 2 कार्बन एक्सोलेसिटेट यानी एक्सोसिलेटेट 4 कार्बन से जुड़कर 6 कार्बन युक्त सिटेट बनाता है। यहाँ से जो है सैट्रिक अम्ल चक्र का प्रारंभ होती है। जैसे जो है एसिटाइल समूह जो है चक्र में आगे बढ़ता है तो 2 जो है कार्बोक्सिलीकरण यानी कार्बोक्सिलेशन क्रियाओं में 2 कार्बन अणु निकल जाते हैं तथा 4 जो विहाइड्रोजीकरण यानी विहाइड्रोजीकरण जो होती है क्रियाओं में हाइड्रोजन जो है वाहकों में जुड़ जाता है, जिसकी फलस्वरूप जो है 3 NADH2 एवं 1 FADH2 अणु बनते हैं। कहते हैं प्रत्येक TCA चक्र के दौरान जो है ATP का एक अणु भी प्राप्त होता है। यह याद रखने योग्य है कि ग्लूकोज के एक अणु में एसिटाइल समूह के 2 अणु बनते हैं। अंततः जो है ग्लूकोज को जो है एक अणु के जो है इस्तेमाल हेतु TCA के 2 चक्र होते हैं। प्रत्येक चक्र के अंत में जो है ऑक्सोलोसिटेट का जो है पुनरुत्पादन होती है और अन्य एसिटेट जो समूह में जुड़ने के लिए ये सदैव ही तैयार होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं अंततः जो है सैट्रिक अम्ल चक्र के जो है अंत में NADH के 10 अणु और 2 अणु जो है ग्लूकोलाइसिस तथा 2 FAD2 का जो है ग्लूकोलाइसिस से प्राप्त 2 ADH के अणु में बनते हैं। अब इस प्रकार जो है आरंभिक ग्लूकोज से मुक्त हुए हाइड्रोजन आयन जो हाइड्रोजन वाहकों यानी NADH तथा FAD से जुड़ जाते हैं तथा ये हाइड्रोजन वाहक एक आगे की प्रवस्था में से श्वसन श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और इस क्रिया से भी ऊर्जा ही मुक्त होते हैं। आगे हमारा जो है दोस्तों ETC के बारे में श्वसन श्रृंखला अथवा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला देखते हैं क्या है इसमें। Here, respiratory chain is electron transport chain, mean ETC. Friend, there is or oxidative
is a phosphorylations. There is important reaction of the ETC, the electron transport chain. The hydrogen carrier now move to the inner membranes of mitochondria, and this is a membrane folded called to the crates, which is increasing the surface area. The hydrogen ion carried to their crates is undergoes to step view and the oxidation using to molecular oxygen and energy is released in a series of small steps. Some of this energy is used to the make a ATP from ADP and the inorganic phosphate. This is called to the oxidative phosphorylation. The phosphorylation is the oxidative reaction, and the here during this reaction the hydrogen is split into the H positive and electron 1 negative, which are the sapped by the a series of hydrogen or electron carry ending with oxygen. This series of carry the constitute their respiratory chain. They here show the respiratory chain oxidative phosphorylation reaction here. There is the most important, for example, NAD the oxidizing and the reducing to the NADH plus positive, the formation of ATP, and the further reaction ADH plus H positive reduced to the oxidizing FAD. Then further if the ATP is released and the cytochromes is there is a Fe3 positive oxidizing there here reducing to Fe2 positive, and the copper is reducing their cytochromes oxidizing to the copper 2 positive oxidize, and the here oxygen release and also the H2O. Their respiratory chain is oxidative as a phosphorylation reaction. Hydrogen electron at the higher energy level are passed from one carrier to the next. The moving downhill is the energy term until they reach the oxygen, the finally acceptor of electron, which as a result is reduced to water. At the each transfer level, some energy is released as the heat and the sum of the transfer rate. This is used for the formation of ATP. The final step involved to the cytochromes oxidizing enzyme which hand over to the electron to the H positive before the having acceptor to the oxygen from a water. And for the each NADH2 that enter to the respiratory chain, 3 ATP can be made, but for the each FADH2 only 2 ATP can be made. Can you guess why? This is owing to the fact that FADH2 enter to the respiratory chain at the lower energy level in their chain of reaction. And substance like carbon monoxide and H2S hydrogen sulfide act of the poison since there is a block the H transfer system and the stop the ATP generation. Here shown in this diagram, there is table the over buzzard for the anaerobic respiration for the one glucose molecules. This is a table. Glucolysis is a carbon dioxide, ATP, and H positive. There is a formation, pelvic acid and Krebs cycle, and total formation on the here. There is a total number of ATPs molecules of 38 in the reaction, and They remember that a two-thirds of the Krebs cycle they take place for a glucose molecules. At the end of glucolysis, two pelvic acid molecules are formed, each of which they separately enter to the Krebs cycle. According to some biologists, their total number of 80 molecules produced in the cell respiration after the oxidation of one glucose molecules in the 36 and not a 38 because 2 NADH2 is the molecules produced in a glucolysis is the cytoplasm. That theoretically they are oxidizing through the electron transport system in the mitochondria. In the mitochondria, on the other hand, the matrix already having higher concentrations of NADH2 molecules. Thus, the 2 NADH2 is the molecules produced in a glucolysis have to enter to mitochondria against the concentration gradient for oxidation, and for this process, 2 ATP molecules would be consumed. For this reason, the net amount of the ATP molecules per glucose oxidation by the aerobic respiration should be 36. However, the syn bacteria do not have a mitochondria. The number of ATP molecules produced per glucose molecules oxidizing by the prokaryotes. Yes, so in this diagram should be considered as 38. There is a mitochondria cell matrix and citrus. There is a reaction by the glucose is a glucose, glucolysis and pelvic acid in the cytoplasm 2 ATP, and there is a release of CO2. There is a matrix and the mitochondria in the reaction for their show on this diagram.
So here is the Krebs cycle. There present of other side is a 4 CO2 and 2 ATP. There other the further formation of the 6 NADH positive as a hydrogen and 2 FDH plus hydrogen is a further divided by 2 FDH plus hydrogen and 10 NADH plus 2 hydrogen is respiratory chain. Here is the release of oxygen the inhale and produced by the 34 ATP and 2 FAD. That is 36 and 10 is NAD. And there are further divided by the 12 H2O and the here 6 H2O used in the decarboxylations and the 6 H2O is water. The summary of the aerobic respiration for here. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है जो कि पायरुविक अम्ल तथा वायवीय श्वसन में पहुँचाना, किस प्रकार जो है पायरुविक अम्ल जो है वायवीय श्वसन में पहुँचाता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने जाना है और समझा है कि जो ग्लूकोलाइसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के 2 अणु में परिवर्तित हो जाती है, जो हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था। ठीक है कि ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तित कर देती है। तो ये सब प्रक्रिया जो होती है ग्लूकोलाइसिस के रिगार्डिंग होती है और ये ग्लूकोलाइसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BSc के लिए भी, +2 के लिए भी, 11वीं क्लास के बच्चों के लिए भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहता है। कहते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो हाइड्रोजन को त्याग कर जो है एसिटाइल्स यानी COA में परिवर्तित हो जाता है। CO भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना जो है वैल्यू रखता है। कहते हैं इस प्रकार जो है एसिटाइल्स यानी COA ग्लूकोलाइसिस एवं श्वसन के आगे क्रियाओं के बीच जो है सेतु का कार्य करता है, यानी एक सेतु का कार्य करता है दूसरों को जोड़ने के लिए, जिसमें ATP के रूप में है अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कहते हैं एसिटाइल जो होता है COA वसा प्रोटीन से भी उत्पन्न होती है। देखिए दोस्तों ये बहुत काम की बात है कि ये PMT क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि एसिटाइल जो है वसा और प्रोटीन दोनों से ही उत्पन्न होती है, यानी एसिटाइल COA जो है वसा और प्रोटीन से उत्पन्न होती है जो कि इसको विशिष्ट बनाती है। अब हमारा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कर्वल चक्र या सैट्रिक्स अम्ल चक्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहते हैं एसिटाइल जो होता है COA अणु कैल्विन चक्र में प्रवेश करता है तथा यह क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया के धात्री यानी मैट्रिक्स में होता है। यानी COA के प्रवेश जो है कैल्विन चक्र में जब प्रवेश करता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो है मैट्रिक्स में ये जाके एंट्री कर जाता है। और इस चक्र के विस्तृत विवरण सर हैंस कैल्व्स ने जो है 1930 में दिया था, यानी इसका जो विस्तृत वर्णन है जिसके बारे में अभी हम जान रहे हैं और पढ़ रहे हैं उसको जो है सर हैंस कैल्व्स ने जो है 1930 में दिया था, इसको डिस्कवर किया था। तो याद रखना कैल्विन चक्र का जो है खोज किसने किया था? सर हैंस कैल्व्स ने। ये PMT क्वेश्चन है और कब किया था? 1930 में। ठीक है, इसे जो है ट्राइकोबोसिलिक अम्ल चक्र या TCA चक्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको हम दूसरा नाम जो है ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र यानी ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र या TCA के रूप से भी हम जानते हैं। तो ये भी याद रखना, इसका दूसरा नाम जो है क्या है, क्या नाम है दोस्तों? ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल TCA, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको दोहराया है। कहते हैं कैल्विन चक्र का जो है यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, कैल्विन चक्र के डायग्राम। तो आप देखोगे यहाँ पर बहुत ही सिंपल और अच्छा मॉडिफिकेशन की गई है। कहते हैं पायरुवेट जो होती है C3C के साथ स्टार्ट होती है और NAD पॉजिटिव के साथ जो है NADH प्लस हाइड्रोजन की जो है 3 में सांद्रता बढ़ती है और प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता इसमें मुक्त होती है। कहते हैं एसिटाइल जो होता है 2CA के साथ करता है, यानी कोई एंजाइम ये दौरा ले जाएगा और ये दौरा ले जाके कहाँ करेगा? जो है कैल्विन चक्र में पहुँचाएगा और ये प्रक्रिया जो होगी क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज होने के लिए क्या होगा? देखो ये यहाँ पर क्लियर दिखाया गया है कि एसिटाइल जो होता है COA यानी 2C के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद सैचुरेट में जाता है जहाँ पर 6C के रूप में है। उसके पश्चात जो है ये CO2 के साथ सांद्रता कर लेती है और यही इसी के साथ जो है NAD पॉजिटिव और NADH प्लस हाइड्रोजन आयन की जो है यहाँ पर सांद्रता बढ़ती है। उसके बाद ये जो है प्रवेश कर जाती है अल्फा कीटोग्लूटेट में, यानी 5C में कन्वर्ट हो जाती है और इसके साथ जो है CO2 ATP और यहाँ पर जो है FAD जो है FADH पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है और साथ जो है 2 NADH प्लस 2H और 2 NAD के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद जो है
जो है जेलो एसीटेट यानी 4C का निर्माण होता है और फिर चक्र जो है दोबारा से वही प्रोसेसिंग में आ जाता है। तो ये कर्वस चक्र जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात रखता है। उसके पश्चात कहते हैं कि इस प्रक्रिया में जो ये श्वसन के चरण जो हुआ है, आखिर इसमें क्या विशेषता और क्या इसमें फॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 2 पायरूबिक अम्बल से स्टार्ट किया था और प्लस इसमें 8 NAD के साथ रिएक्ट किया था और फिर इसमें था 2 FD था और प्लस 2 ADP था। तो इसके साथ जो फॉर्मेशन हुआ, देखिए क्या फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ यानी 6 CO2 का फॉर्मेशन हुआ, प्लस 8 NADH का फॉर्मेशन हुआ और प्लस जो है 2 FADH2 का फॉर्मेशन हुआ, प्लस जो है यहाँ पर है 2 ATP का भी निर्माण हुआ। अब देखिए इतना विशिष्ट, मैंने कहा था ना ये बहुत ही विशिष्ट निर्माण करता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ATP की एनर्जी के लिए। कहते हैं हाइड्रोजन वाहक यानी NAD, याद रखना दोस्तों, PMT क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जो वाहक है यानी जो वेक्टर है वो NAD है और FAD जो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होते हैं। FAD जो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स से उत्पन्न होते हैं तथा इनको हम एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम। और जो है कॉम्प्लेक्स विटामिन किससे उत्पन्न होती है, FAD जो होती है विटामिन B कॉम्प्लेक्स से उत्पन्न होती है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। देखिए कहते हैं एसोटाइल जो होता है समूह 2 कार्बन ऑक्सो एसीटेट यानी 4 कार्बन से जुड़कर 6 कार्बन युक्त सिट्रेट बनाता है। यहीं से जो है सेट्रिक अम्ल चक्र आरंभ हो जाती है, यहीं से जो है सेट्रिक अम्ल आरंभ कर देता है। जैसे एसिटाइल समूह चक्र में आगे बढ़ता है तो यहाँ जो है विकावेक्सीकरण यानी डीऑक्सोलेशंस, विकावेक्सीकरण यानी डीकार्बोक्सिलेशन क्रियाएं में 2 कार्बन अणु निकल जाते हैं, यानी 2 कार्बन अणु जो होते हैं यहाँ से अपने आप को त्याग कर देते हैं, निकल जाते हैं। और 4 जो है विहाइड्रोजनीकरण यानी 4 जो है विहाइड्रोजनीकरण क्रियाओं में हाइड्रोजन वाहकों में जुड़ जाता है, यानी इससे त्याग करेगा और 2 कार्बन जो अणु निकल जाता है यानी विक्सो कार्बोक्सीकरण यानी डीऑक्सी कार्बोक्सी से वो क्या करेगा, निकलेगा और जो विहाइड्रोजनीकरण में जाकर जुड़ जाएगा यानी हाइड्रोजन वाहक में जुड़ जाता है, जिससे फलस्वरूप जो होता है 3ADH2 का निर्माण होता है, जैसे हमने चक्र में भी देखा था। ठीक है, साइकिल भी जो था हमारा केवल साइकिल, उसमें भी हमने ये बात को नोट किया था और FADH2 अणु में कन्वर्ट कर देता है। करते प्रत्येक जो है TCA चक्र के दौरान जो है ATP के एक अणु भी प्राप्त होती है, यानी याद रखना जब ये TCA के चक्र होती है तो उसके दौरान जो है ATP का एक अणु भी प्राप्त होती है। ये याद रखने योग्य है कि ग्लूकोज के एक अणु से एसिटाइल समूह के 2 अणु बनते हैं। देखिए याद रखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्लूकोज के एक अणु से जो है एसिटाइल के 2 अणु बनते हैं। ठीक है, 2 अणु का जो है यहाँ निर्माण होता है। अंततः ग्लूकोज के अणु के इस्तेमाल हेतु TCA के 2 चक्र होते हैं, TCA के 2 चक्र लगते हैं। प्रत्येक चक्र के अंत में जो है ऑक्सोलेस एसीटेट का पुण्य उत्पादन होता है जो अन्य एसिटाइल समूह में जुड़ने के लिए सदैव तैयार रहता है। तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट और दार्शनिक बात है। साथ में कहते हैं कि अंततः जो है सैट्रिक अम्ल के अंत में जो होता है NADH के 10 अणु यानी 2 अणु जो है ग्लाइकोलाइसिस तथा 2 FADA ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त 2 ADH के अणु बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैट्रिक अम्ल के अंत में क्या होता है, NADH के 10 अणु का निर्माण होता है, जिसमें कि 2 अणु जो होता है ग्लाइकोसिस यानी ग्लाइकोसिस के होते हैं और 2 जो होते हैं FADH2 में ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त 2 NAD के अणु बनते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं अब इस प्रकार जो आरंभिक ग्लूकोज से मुक्त हुए हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन वाहकों NAD तथा FAD से जुड़ जाते हैं तथा ये हाइड्रोजन वाहक एक आगे की प्रवस्था जिसे हम श्वसन श्रृंखला में प्रवेश कराते हैं और इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा ही मुक्त होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि प्रवाह जिसे हम श्वसन श्रृंखला में प्रवेश जब करता है तो इसी प्रक्रिया में जो है ऊर्जा मुक्त होती है और ऊर्जा जो है कितना इंपॉर्टेंट है सभी जीव जंतुओं के लिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आता है कि श्वसन श्रृंखला अथवा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला यानी ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है चैन में क्या आखिर होता है, यानी ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। अब देखिए इसमें क्या होता है, श्वसन श्रृंखला में श्वसन की जो श्रृंखला बनती है तो उसमें क्या होता है, कहते हैं हाइड्रोजन वाहक अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में प्रवेश करते हैं और इस भीतरी झिल्ली में भीतर की तरफ उभरी संरचनाएं होती है जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं और इससे इसकी सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी काफ़ी जो है इसका
क्षेत्रफल जो होती है एरिया वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टल में उपस्थित हाइड्रोजन का आणविक ऑक्सीजन द्वारा चरणबद्ध ढंग से ऑक्सीकरण होता है तथा छोटे छोटे चरणों में ऊर्जा जो है विमुक्त करती है। छोटे छोटे चरणों में दोस्तों यहाँ पर जो है ऊर्जा को विमुक्त करती है। इसमें से कुछ ऊर्जा जो है एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से मिलकर एटीपी बनाने में जो है प्रयुक्त होती है तथा यह प्रक्रिया जो है ऑक्सीकृत फास्फोटीकरण कहलाती है। देखिए याद रखना कि फास्फोटीकरण क्या होती है, जिसमें जो है एडीपी तथा कार्बोनिक फास्फेट से मिलकर एटीपी बनाने में प्रयुक्त होती है तथा इस प्रक्रिया को जो है हम ऑक्सीकृत फास्फोफेटीकरण कहलाता है। तो ये भी डेफिनेशन के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना स्थान रखता है। कहते हैं इस अभिक्रिया के दौरान जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एवं हाइड्रोजन आयरन में टूट जाता है और ये इलेक्ट्रॉन एवं आयरन इलेक्ट्रॉन वाहकों की एक श्रृंखला द्वारा ग्रहण किए जाते हैं जिसका अंत ऑक्सीजन से होता है और वाहकों को जो है इसी श्रृंखला को हम सुभाषण श्रृंखला यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि ये इलेक्ट्रॉन एवं आयन इलेक्ट्रॉन वाहकों की श्रृंखला द्वारा ग्रहण किए जाते हैं जिसका अंत ऑक्सीजन से होता है, यानी इसकी एंडिंग पॉइंट जो होता है ऑक्सीजन से होता है और वाहकों की इसी श्रृंखला को हम सुभाषण श्रृंखला यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आपको याद हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है हमारे समक्ष एक डायग्राम प्रस्तुत है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम सुभाषण श्रृंखला यानी ऑक्सीकरण फास्फोरीकरण के रूप में देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो NAD पॉजिटिव यानी ऑक्सीकृत के रूप में है, लेकिन ये अपचायित किससे हुई है, NAD+H हाइड्रोजन से अपचायित हुई है जिससे हमारा NAD का फॉर्मेशन हुआ है। प्लस यहाँ पर देखिए ATP का भी निर्माण हो गया। अब यहाँ पर जो है विशिष्ट ये बात रखता है कि अपचायित जब FADH पॉजिटिव होगा तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगा यानी FAD पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर भी जो है एनर्जी रिलीज करने के लिए ये तैयार हो जाएगा। लेकिन दूसरा जब हम रिएक्शन देखेंगे अपचायित हो गया यानी Fe पॉजिटिव जो होगा आयरन पॉजिटिव जो होगा जब ये अपचायित होने की कोशिश करेगा तो ये भी जो है ऑक्सीकृत हो जाती है, साइटोक्रोम में चली जाती है और इसके साथ जो है आपको ATP का भी निर्माण देखने को मिलता है। अब कहते हैं ऑक्सीकृत जब कॉपर के साथ होता है तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बना देता है और ये अपचायित हो जाता है और कॉपर ही निर्माण करता है। कॉपर पॉजिटिव करता है, जब कॉपर पॉजिटिव के निर्माण के दौरान कॉपर पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है तब जाके यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का निर्माण होता है और जब ऑक्सीजन का निर्माण होता है तो साथ में आपको पता ही है कि इसमें जल भी जो है निकलता है। ऑक्सीजन के साथ जो है जल का अपना एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है जल का ही फॉर्म बनाता है जब हाइड्रोजन के साथ वह रिएक्ट करता है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जो हर एक जीव जंतु के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर निभाता है। अब देखिए उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर तक वाहकों द्वारा जो है ऑक्सीजन तक ले जाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का अंतिम गाही है तथा ऑक्सीजन अपचायित होकर जल में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्येक स्थानांतरण पर कुछ ऊर्जा मुक्त होती है तथा इससे कुछ ऊर्जा जो है ATP में प्रयुक्त भी हो जाती है। अंत में साइटोक्रोम जो है ऑक्सीडेज एंजाइम H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण करने के जल बनाने से पहले। कहते हैं NADH2 के प्रत्येक अणु जो कि श्वसन श्रृंखला में प्रवेश करते हैं उनसे ATP के 3 अणु बनते हैं परंतु FAD2 के प्रत्येक अणु से केवल 2 ATP ही बनता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि FADH2 श्वसन श्रृंखला में अंतिम चरण में प्रवेश कर जाता है। इसका कारण समझे क्या होता है, ATP 2 ATP इसलिए बनता है क्योंकि FADH2 जो है श्वसन श्रृंखला के अंतिम चरण में पहुंच जाता है जो कि इसको एक विशिष्ट और सुचारू से बनाता है। कहते हैं कार्बन और मोनोऑक्साइड को जो है हाइड्रोजन सल्फाइड विष के समान होते हैं। ये आपको पता भी होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड एक विष के समान होते हैं क्योंकि ये श्वसन श्रृंखला के लिए हाइड्रोजन स्थानांतरण तंत्र ATP निर्माण के अवरुद्ध करते हैं, यानी ATP जब निर्माण होता है तो उसको अवरुद्ध करते हैं इसलिए जहरीला होता है। कौन सा दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ये विष की तरह समान होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक हमारा टेबल दिया गया जिसमें एक ग्लूकोज अणु के अभावी श्वसन के पूर्ण वितरण को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है सारी चीज़ें बनती है। अब यहाँ पर देखोगे ग्लूकोलाइसिस, पेरुवेट, ठीक है, कैविट चक्र और कुल जो है कैसे निर्माण हुआ है जिसमें CO2 ATP NADH पॉजिटिव के रूप में है FAD2 में। अब देखिए यहाँ पर जो है ग्लूकोलाइसिस में 2 और कैविट चक्र में सिर्फ 2 हुआ है जबकि ग्लूकोलाइसिस में NADH में 2 हुआ है, पेरुवेट में 2 और जो है कैविट चक्र में 6 हुआ है।
तो इस प्रकार जो है सारे कैलकुलेशन जब आप करोगे तो एटीपी के अणु की कुल संख्या जो होता है 38 होता है, ये याद रखना। एटीपी के अणु की कुल संख्या जो होता है 38, और 38 कैसे आया, जैसे आप एक टेबल देख रहे हो उसको कैलकुलेशन करके आया है। यहाँ पर देखिए जो है NADH2 का है जो है 30 आ गया, और यहाँ पर जो है ATP 4 आ गया, और 2 इनसे मिल जाती है। ठीक है, तो टोटल जो होता है कितना जाता है 38 हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। अब कहते हैं ग्लूकोलाइसिस प्रक्रिया के अंत में जो ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा प्रत्येक जो है पायरुविक अम्ल का अणु जो है केल्विन चक्र में अलग अलग प्रवेश कर जाता है, यानी इसका जो होता है अलग अलग प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपके समझ की डायग्राम है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है मैट्रिक्स क्रिस्टल के रूप में प्रेजेंट है, और इसी के जो है फॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए। जीव द्रव्य है, ग्लूकोज है, ग्लूकोलाइसिस है, जिसमें 2 ATP निर्माण हुआ है, पायरुविक्स में भी 2 हुआ है, और CO2 भी है। तो इसके साथ जो है ये आगे यहाँ पर डिवाइड किया है 2 NADH के और H पॉजिटिव के साथ, और इसके साथ है 2 NADH पॉजिटिव के साथ हुआ है। अब यहाँ पर चक्र जो है आगे बढ़ा है, जिसमें एसीटोन एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया का धात्री में जो है 4 CO2 का निर्माण हुआ है, केल्विन चक्र में जो है 2 ATP का यहाँ पर निर्माण को दर्शाया गया है। साथ में देखिएगा तो 6 NADH प्लस हाइड्रोजन के साथ है, 2 FDH जो है हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके जो है यहाँ पर 2 FDH प्लस H हाइड्रोजन का जो है निर्माण किया है, और प्लस 10 NADH प्लस हाइड्रोजन का जो है विशिष्ट इसमें महत्व रखता है। अब यहाँ पर देखिएगा जो श्वसन श्रृंखला होती है, तो इसमें देखिए 6O2 का निर्माण होती है, और ये श्वसन क्रिया करके जो है 34 ATP प्लस 2 FAD प्लस 10 NAD, तो इस तरह से जो है निर्माण किया जाता है। कहते हैं डिकॉक्सीकरण में पानी के 6 अणु प्रयोग में आते हैं, जिसमें 6 अणु पानी के होते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा वायवीय संवर्षण में ये क्रिया होती है। Now our next topic is the significance of Krebs cycle on the acetic CoA. Friend, it's an important topic. The significance of Krebs cycles and acetyl CoA. It is a major pathway to release the reduced coenzyme and energy in a controlled manner. It is the common pathway for oxidative breakdown of glucose, carbohydrate, fatty acid, and amino acid. The fatty acid undergoes to the beta oxidation to the produce acetyl CoA and amino acid from protein enter to the Krebs cycle after eliminations and remove of the H positive hydrogen groups of amino acid. And Krebs cycle provides a series of intermediate compound needed for the synthesis of the biomolecules like amino acid and nucleotides and chlorophyll and fat. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है केवल चक्र एक एसिटाइल यानी CoA का महत्व क्या है, ये कहाँ पर यूज़ होता है और इसका क्या महत्व रखता है हमारे लाइफ में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चक्र द्वारा जो है अपचयित एंजाइम तथा ऊर्जा नियंत्रण ढंग से निकलता है, यानी इसमें एंजाइम और ऊर्जा जो है नियंत्रण ढंग से निकलता ही रहता है। तो अभी तो CoA इतना इम्पोर्टेंट है, कहते हैं यह जो है एल्डिहाइड और जो है वाष्य अम्ल अमोनियम अम्ल के जो है स्वीकृत विखंडन का सामान्य पथ है, और वाष्य अम्ल अल्फा ऑक्सीकरण द्वारा जो है एसिटाइल CoA में परिवर्तित हो जाता है तथा जो है यहाँ पर प्रोटीन अमीनो समूह -NH2 के त्याग कर अमीनो अम्ल के रूप में जो है Krebs चक्र में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है, ये एग्जामिनर की फेवरेट क्वेश्चन बनाता है हमेशा ही, और PMT की भी रहा है। Krebs चक्र द्वारा उसके जो है मध्यस्थ यौगिकों का निर्माण करता है जो अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोटाइड्स जो है पनरहीम एवं भाषा जैसे जैव अणुओं में संश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य करता है।